Hi friends, what's up? So welcome to the channel of Unacademy CA Final. I hope you are enjoying all the lectures which are getting uploaded every day by all the educators on Unacademy platform. If you want more videos, live sessions, quizzes, MCQs which will start in the next week, download Unacademy app and subscribe to a plan because that would be live session. Okay, when you download the plan and when you download the Unacademy app and you subscribe to a plan, use the code ABCA. When you use code ABCA, you will get 10% discount. Okay, and keep coming onto this channel again and again for all the regular updates regarding your final course, regarding all the 8 subjects. So guys, today we're gonna start with a very simple topic, Essay 706, which specifically talks on emphasis of matter para and other matter para. Emphasis of matter para and other matter para. So guys, if you have watched my video of Essay 705, where I have spoken regarding opinion. So the auditor modifies the opinion. Modifies means he gives any opinion other than clean opinion. That is qualify adverse disclaimer. Now we're gonna do today the next essay that speaks about Essay 706, emphasis of matter para and other matter para. अब ये होता क्या है? What is the use of this para or this essay? What exactly is this? If you go by the literal meaning, emphasis means so stress, importance, weightage. Other means other. A student like me who like say other means other, na bhangar types. Take a extra. Other means other. All the other things we write in other matter para. Now, what exactly this essay talks about? So guys, both the paras are part of independent auditor's report. So guys, both the paras are part of audit report. Now sir, how do you distinguish whether you have to write in emphasis or whether you have to write in other matter? So if you remember the hierarchy of Essay 700, it says title, addressees, opening para, opinion para, basis para. Then you talk about going concern right there. Now after, opinion, then basis, then you have to insert this para, EOM or OM para. Now, how do you differentiate as a student, sir, what is EOM and what is OM? Very simple logic. Very simple logic. If one particular thing has been disclosed in financial statement, if one particular item has been disclosed in financial statements, financial statement mein it is disclosed by the management. Now, as an auditor, if you want to inform this statement to the owners of the company, who are the owners? Sir, the shareholders who have appointed you. So now if you have to inform this particular thing to the members, there is one particular disclosure which management has made in the FS. You should read it. It is important for you. That is why we are giving emphasis on that. As an auditor, you have to give stress, you have to give importance, you have to give weightage. So you inform to the members. Members, please read it. So as per clause, as per note number, let us assume 10. As per note number 10 in the FS, there is one particular thing which the management has disclosed. So if you want to read it, so you read it in the FS. Now why do we do that? Why it's important? See, FS is not read by everyone because it's the huge part. Lot of things, lot of points, lot of contents. Now, science students, art students, they do not know what is balance sheet, what is assets, what is liabilities. Being a commerce student, till today, we have not known the entire facts of the balance sheet. So for a BCom or for a non-commerce student, that is science, arts, home science people, if you are a director and you have taken a science background, so it's difficult. I'm not saying you do not know it. Maybe you know it, but exact facts you will not know it. Now, those shareholders, those owners have appointed me as auditor. Now, if anything important is that I have to inform him. So where do I inform him? कान में जाके बोलो सुनना एक काम है अरे आना. You have to mention in the audit report because as an auditor you inform, you speak to the shareholders through audit report only.
So in the audit report, you will write in a para which is called as emphasis of matter para. ठीक है? Now hold on. So it says SA 706, emphasis of matter para and other matter para in the independent auditor's report. So we call it as EOM and OM. There are a lot of students who call it as OM para, sir, OM para, OM, jadoo, OM para. Bhai, it is called as EOM and OM para. Now, how do you differentiate this? Listen. So, Aye Babu. Paras. There are two kinds of para in an audit report. EOM para and OM para. EOM para and OM para. एक ऐसी बात जो एफएस में आई है, एक ऐसी बात जो एफएस में डिस्क्लोज की गई है, एक ऐसी बात जो एफएस में डिस्क्लोज कर दी गई है, एक ऐसी बात जो एफएस में डिस्क्लोज कर दी गई है. कौन डिस्क्लोज करेगा सर? मैनेजमेंट. एंड इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स. इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स. मेरे को मेरे मालिक को बताने का, मेरे को मेरे ओनर्स को बताने का. मेरा मालिक कौन? सबका मालिक है कौन? शेयर होल्डर्स. सो मैं कहां लिखूंगा उसको? EOM पैरा में. कहां लिखूंगा? EOM पैरा में. एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है, अगेन आई रिपीट, एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है. अच्छा, इट इज सिग्निफिकेंट या इफ इट इज फंडामेंटल टू माय यूजर्स, तो हम उसको कहां लिखेंगे? EOM में लिखेंगे. एक ऐसी बात जो एफएस में डिस्क्लोज नहीं की गई है बट इट इज रेलेवेंट टू द यूजर्स, वो कहां जाएगी? OM में जाएगी. वो कहां जाएगी? वो OM में जाएगी. वापस बोलता हूं, ए भाई, एक ऐसी बात जो एफएस में आ गई है, फंडामेंटल है मेरे यूजर्स के लिए, कहां लेके जाएंगे उसको अपन? EOM में. एक ऐसी बात जो एफएस में नहीं आई है, डिस्क्लोज नहीं की गई है, पर मेरे यूजर्स के लिए रेलेवेंट है, उसको कहां लिखेंगे अपन? OM में. सो इन एन ऑडिट रिपोर्ट अकेला EOM भी आ सकता है, अकेला OM भी आ सकता है, या EOM भी आ सकता है, या OM भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है? वो बेसिकली ऑडिटर का जजमेंट होता है. एंड व्हेनेवर ही इज डिसाइडिंग टू इंक्लूड दिस पैरा, वेदर EOM और OM, ही शुड फर्स्ट कम्युनिकेट विद TCWG कि मैं ऐसा एक पैरा लिखने वाला हूं. उसको इन्फॉर्म करें, पूछना नहीं है. यू हैव टू कम्युनिकेट विद TCWG, आई एम गोना डू दिस थिंग. अब सर एग्जाम्पल लेके बताओ कैसे करना है इसको. हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू डिसाइड वेदर इट इज EOM और OM, और कहीं जाएगा ही नहीं. एक ऐसी बात जो एफएस में डिस्क्लोज कर दी गई है, मेरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, फंडामेंटल है, उनके डिसीजंस के लिए, उनके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है, तो उसको मैं कहां लिखूंगा? एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा में. कहां लिखेंगे बच्चे उसको? बाद एम्फसिस ऑफ मैटर. अब ये कहना क्या चाहता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बताओ 110% आपका आंसर रॉन्ग होगा. क्या कंटीजेंट लायबिलिटी एफएस में दिखती है? क्या कंटीजेंट लायबिलिटी एफएस में दिखती है बच्चों? क्या कंटीजेंट लायबिलिटी एफएस में दिखती है? नहीं सर, वो तो नोट्स में दिखती है. अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या कंटीजेंट लायबिलिटी एफएस में दिखती है? हाँ. ए भाइयों और बहनों, जो नोट्स है, नोट्स वो भी तो एफएस का पार्ट है ना, अपन उसको डिस्क्लोज करते हैं ना. वहां पर 50 लाख का एक कंटीजेंट लायबिलिटी है जो मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज करके, अज्यूम करो नोट नंबर 5 में. Is it important? हाँ सर. Is it fundamental? हाँ सर. Is it so significant that it should be informed to the shareholders? Yes sir. So auditor, ये बात कहाँ लिखोगे आप उसको? Emphasis of matter में कि we draw your attention to note number 5 of the financial statements which talks about contingent liability of 50 lakh rupees. So कोई भी जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा होगा, वो देखेगा ये emphasis of matter पैरा डाला है, उसमें एक पॉइंट है नोट नंबर 5. चलो मैं जाके एफएस में नोट नंबर 5 जाके पढ़ता हूं, क्योंकि मैं पूरा एफएस नहीं पढ़ने वाला, मैं जाके नोट्स पढ़ने वाला हूं, और सारे नोट्स भी नहीं जो ऑडिटर के हिसाब से एम्फसिस वाले हैं. ठीक है? दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जांपल, हमने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, क्लाइंट ने, मैनेजमेंट ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है. सो लेट अस अज्यूम SLM से WDV किया होगा. अब जब क्लाइंट ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, मतलब SLM से WDV किया है, मतलब सर ये बात तो एफएस में डिस्क्लोज की होगी. क्यों सर? अरे एक तो उसका इफेक्ट आया होगा P&L में, बराबर नोट्स में डिस्क्लोज किया होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की है. हाँ सर, नोट्स में आया ना चीज. तो इज इट इंपॉर्टेंट? हाँ सर.
कहां लिखेंगे? ईओएम में, क्योंकि एफएस में डिस्क्लोज है। तीसरा, हम लोग को कोई नया, लेट अस अज्यूम इंड एएस है, ठीक है, कोई हम लोग को इंड एएस था जो डेफर करके एप्लीकेबल होते हैं, हम लोग को इस साल एप्लीकेबल नहीं था, क्लाइंट को इस साल एप्लीकेबल नहीं था, पर फिर भी क्लाइंट में चर भी है, एप्लीकेबल करवा दिया। अरे हमको इस साल वॉलेंट्री था, हमको एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, फिर भी क्लाइंट ने क्या किया, उसको एप्लीकेबल करवा दिया। मेरे को बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं था, फिर भी एप्लीकेबल करवा दिया, क्या ये बात क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गया है? क्या ये बात अकाउंट्स में दिखेगी, एफएस में दिखेगी? बोलो, दिखेगी? हाँ सर दिखेगी तो ना। अरे भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किधर लगाएगा तू? अकाउंट्स में लगाएगा ना राजा, थोड़ी एफएम कॉस्टिंग में लगाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन अकाउंट्स में लगाएगा तो दिखेगी ना ये चीज तो, और मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज करके नोट्स में। हाँ सर एफएस में आ गया ना, आ गया ना, कहां ठोको, कहां ठोको? ईओएम में, तो यू विल राइट इट इन ईओएम पैरा, यू विल राइट इन ईओएम पैरा। एक और एग्जांपल, अब क्या हुआ, क्लाइंट ने सब्सटैंशियल फिक्स्ड एसेट बेच दिया, अज्यूम करो फैक्ट्री बेच दी, मशीनरी बेच दी, कुछ ना कुछ तो बेच दिया, कुछ सब्सटैंशियल फिक्स्ड एसेट बेच दिया। सर बेचा ना, तो क्या हुआ इससे? अरे भैया सब्सटैंशियल फिक्स्ड एसेट बेच दिया है, मतलब मशीनरी बेच दी है, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री बेच दिया, तो तुम्हारा वो हिल गया, क्या हिल गया? सर गोइंग कंसर्न। अरे गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिल गया है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिल गया है, तो ये बात मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगा, क्योंकि अपन अगर जीसी फॉलो कर रहे तो डिस्क्लोज नहीं करते, पर अगर अब जीसी फॉलो नहीं होता है तो अपन उसको डिस्क्लोज करते हैं, बराबर डिस्क्लोज करेंगे। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया होगा, साथ में फिक्स्ड एसेट बेचा तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में जाएगा, जो रेवेन्यू एक्सटेंड का कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में। हाँ सर एफएस में आ गया ना, सिग्निफिकेंट है? यस सर, कहां लिखो? ईओएम में। बेटा सिंपल सा लॉजिक है, एफएस में आया है, फंडामेंटल है, सिग्निफिकेंट है, कहां ठोको? ईओएम में ठोको, कहां ठोको उसको? ईओएम में। सर ओएम में क्या जाएगा? ध्यान से सुना, होल्डिंग को ऑडिट मैंने किया है, मतलब होल्डिंग को ऑडिट अभिषेक बंसल ने किया है, सब्सिडियरी को ऑडिट अज्यूम करो राहुल ने किया है, राहुल इज अगेन डिफरेंट ऑडिटर, अनदर ऑडिटर। होल्डिंग का ऑडिट मैंने किया है, मतलब अभिषेक बंसल ने, सब्सिडियरी का ऑडिट राहुल ने किया है, लेट अस राहुल शर्मा ने किया है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये बात अपन एफएस में लिखते हैं? कभी भी एफएस में से लिखते हैं अपन? ये सब कौनसो वाला जब वो पीएनएल बनेगा या कौनसो वाली जब वो बैलेंस, ए बाबू, जब कौनसो वाली वो बैलेंस शीट बनेगी, वहां पर कौनसो वाली बैलेंस शीट जब बनेगी, ठीक है, सो बैलेंस शीट में वहां पर आता है फिक्स्ड एसेट्स ए बी लिमिटेड, बेबी लिमिटेड, मशीनरी, बराबर। क्या हम लोग इसको ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं क्या? ऑडिटेड बाय CAAB, ऑडिटेड बाय CARS, ऐसा लिखते हैं अपन कभी भी? नहीं सर। तो ये बात तो एफएस में आई नहीं, पर क्या मेरे यूजर्स को पता होना चाहिए कि होल्डिंग सब्सिडियरी का ऑर्डर अलग अलग है? हाँ सर यूजर्स को पता होना चाहिए, तो इट इज रेलेवेंट, नॉट दैट फंडामेंटल। इससे उनके इकोनॉमिक डिसीजन पे कोई हैम्पर नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ ठीक है सर, ये हाँ बताना चाहिए हमको, तो ये रेलेवेंट है। कहाँ ठोकेंगे अपन इसको? अदर मैटर में। कहाँ ठोकेंगे इसको अपन? अदर मैटर में। अच्छा, अब उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां पर आपका एसएस 600 भी शायद लिंक हो जाता है, याद होगा आपको, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अच्छा, आपने सुना होगा ना, देयर समथिंग कॉल्ड, जिन्होंने बैंक ऑडिट कर रखे हैं बच्चों ने, लफार, LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। अब किसी बैंक ने LFAR फॉलो नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो ठीक है ना सर, क्या करने का उसको अपन? जो उसकी रिक्वायरमेंट LFAR की वो पूरी नहीं की है, कहां लिखेंगे अपन उसको? अदर मैटर में, क्योंकि वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आता, कहीं भी नहीं आता LFAR, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो कहां लिखेंगे अपन इसको? अदर मैटर में। अगर LFAR की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, कहां लिखेंगे अपन इसको? अदर मैटर में। समझा आपको? बहुत ही बेसिक सा डिस्टिंग्विश है बच्चों, एक थिन लाइन का डिफरेंस है। अगर एफएस में आया फंडामेंटल है ईओएम, एफएस में नहीं आया है रेलेवेंट है ओएम में, बस इतना ही है। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लीजिए, प्लीज कॉपी दिस।
डन. आ जाओ, अभी बुक से पढ़ाता हूं आपको. ये देखो, अब फाइनल लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए. आई मीन सी इफ यू वांट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज which is not useful in your next 6 months or next 1 year, it is waste. You're wasting your time. I believe you should do smart study. गद्दा मजदूरी नहीं करना चाहिए आपको. तो अगर किसी ऐसे में वाई डेफिनेशन, ठीक है, एक बार रीड कर लिए, पहली बार के लिए बहुत है, बट जब आप एग्जाम के क्लोज होते हैं सब चीज़ें कभी नहीं पढ़नी चाहिए. स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि आपको ही पता है पेपर में ये सब नहीं आएगा ना. बता वाई दिस कोलावेरी डी, वाई दिस ऐसे, ये पूछेगा क्या इसे, मेरे को बताओ. नहीं सर, नहीं पूछेगा. तो ये सब नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी. हाँ, जब पहली बार आप रीड करो, एक बार रीड करो, एक ही बार बस लाइफ में. हाँ, कभी किसी को लाइफ में आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरत होगा तो पढ़ना बैठ के आराम से. बहुत टाइम है, बहुत टाइम है भैया. यहाँ तो वैसे टाइम नहीं होता. 8 सब्जेक्ट, 6-8 महीना मिलता है पढ़ने के लिए. ऊपर से ऑफिस का इतना प्रेशर सब बच्चों पर, पगला गए सब लोग. ठीक है, अब देखो. सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर रीडिंग, वी विल रीड इट, देन बाद में कभी काम नहीं आएगा. दिस essay deals with additional communication in the auditor's report when the auditor consider it necessary to draw attention to a matter or matters presented or disclosed in the FS that are of such importance that they are fundamental to the user's understanding of FS. फिर draw attention to any matter or matters other than those presented or disclosed in FS that are relevant to the users for understanding the audit, the auditor's responsibility of the auditor's report. तो वही चीज बोल रहे हैं बार बार, बस खत्म. Now what is बच्चों EOM? As per EOM para, I mean as per this essay, EOM means a para included in auditor's report that refers to a matter which is appropriately presented or disclosed in FS. Presented or disclosed in FS. In the auditor's judgment, it is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of FS. बराबर? तो para, disclosed in FS, fundamental, ये important words हैं. The auditor would not be required to modify the opinion as per SS 705 as a result of the matter, and when SS 701 applies, the matter has not been determined to be a key audit matter. भैया इसकी वजह से ऐसा जरूरत नहीं है कि भैया मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई करूं ना, ये मेरे हिसाब से की ऑडिट मैटर, इसको मैं अलग ही लेके चलूंगा. नीचे वही 4 एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको समझाए थे. देखो अभी पहला, एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, जो मैंने आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी बताई. दूसरा, a significant subsequent event that occurs between the date of FS and the date of auditor's report. subsequent event हुआ तो FS में डिस्क्लोज होगा, तो subsequent event. तीसरा, early application of new AS, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, that is a material effect on the FS. चौथा, a major catastrophe that has had or continue to have a significant effect on the entity's financial position. going concern हिल गया, ठीक है, या कुछ लॉस बाय फायर हो गया, या फिर सब्सटेंशियल एसेट बेच दिए, हो गया. चारों FS में आया है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठोक दो EOM में. Considerations. So when the auditor includes EOM para in this report, the auditor shall include the para with a separate section of the auditor's report with an appropriate heading called as EOM para. तो अब heading दे दोगे emphasis of matter. Include in the para a clear reference to the matter being emphasized and to where relevant disclosures that fully describe the matter can be found in FS. So we draw your attention to note number 10 disclosed in FS. तो भी हम लोग रेफरेंस दे देंगे जहां पर पूरा मिलेगा, जो यूजर होगा जिसको पढ़ना है वो जाके नोट नंबर 10 पढ़ लेगा. The para shall refer only to the information present or disclosed in the FS and indicate that the auditor's opinion is not modified in the respect of the matter emphasized. भैया मैं ये नहीं बोलूँगा गलती है यहाँ पर कि मैं इस पर मॉडिफाई कर रहा हूँ. अपन मॉडिफाई कब करते हैं, क्वालिफाइड वाइज डिस्क्लेमर कब देते हैं, जब सर वहां पर कुछ गलती हो. अब मैं खाली क्या बोल रहा हूं कि भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जाके पढ़ लीजिए, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किए, गलती नहीं की है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई नहीं होगा. मैं इस बात के लिए मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं. मॉडिफाई कब करते हैं बच्चों, जब कुछ गलती होती है, मिस्टेक, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज हुआ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप हुआ, तो मॉडिफाई करते हैं ना अपन. तो ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए कैसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 10 ऑफ द FS which describes the effects of a fire in the company's production facilities. Our opinion is not modified in respect of this matter. बस ये हो गया illustration. Now other matter. So what do you mean by, अच्छा क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं. What do you mean by other matter para and what considerations are required while including such para in the report? देखो अभी वही है. That other matter para is a para included in the auditor's report that refers to
a matter other than those presented or disclosed in FS, which in the auditor's judgment is relevant to the user's understanding of the report, the auditor's responsibility or the audit report, the auditor shall include an OM para in his report. ठीक है, provided it is not prohibited by law or regulation. When 701 applies, the matter has not been determined to be a key audit matter and to be communicated in the auditor's report. And when the auditor includes OM para, the auditor shall include the para with a separate heading, other matter or other appropriate heading. जनरली अपन other matter लिखते हैं. So भी ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझने के लिए अगर कोई पॉइंट है जो कि रेलेवेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं है, जिसके इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज नहीं हो सकता उनका, तो उसको मैं कहाँ ठोकूंगा? अदर मैटर में लिखूंगा. अब देखो ये रहा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of ABC company for the March ended so and so were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those matters, on those statements on 31st March. ठीक है, सो अपन ने वो भी बता दिया, ये मैंने आपको बताया था. Is there any duty to communicate to TCWG? If the auditor expects to include EOM para or OM para in his report, the auditor shall communicate with those charged with governance regarding this expectation and the wording of this para. कि भैया मैं इंक्लूड कर रहा हूँ EOM और OM में, मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना ही है. समझा आपको? सो बेटा दो ही चीज़ें, EOM पैरा OM पैरा, ये आ सकता है आपको MCQs में, करेक्ट इनकरेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, कहीं ना कहीं आ सकता है. चलो पहले इसका फोटो खींच लीजिए, EOM का इतना ही, डेफिनेशन का पार्ट एंड एग्जाम्पल्स 4. फोटो खींचो. डन. अब OM का फोटो खींच लीजिए. हाँ, बाद में मेरे को क्रॉप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपके एग्जाम है, मेरी शक्ल की क्या जरूरत है. डन. तो आपका EOM का आंसर हो गया, OM का आंसर हो गया. अब अपन देख लेते कि इस ऐसे पे आईसीए ने क्या पूछा है. देखो अभी ऐसे 706 के क्वेश्चंस. गिव एग्जांपल्स ऑफ EOM पैरा विच में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी एज वेल एज दोज विच में नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. आपको EOM की बातें बतानी है जो कंपनी के फंक्शंस पे इंपैक्ट कर रहा है और जो फंक्शंस पे इंपैक्ट नहीं कर रहा है. सो एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हेन द ऑडिटर कंसीडर नेसेसरी टू इंक्लूड एन EOM पैरा आर, वो तो चारों देखो वही है जो अपन ने पढ़े. अनसर्टनिटी रिलेटिंग टू द फ्यूचर आउटकम, फिर अ सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट अकर्स बिटवीन डेट ऑफ FS एंड ऑडिट रिपोर्ट, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू AS, फिर अ मेजर कैटास्ट्रोफ दैट हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटीज FS, फिर गोइंग कंसर्न assumption इज अप्रोप्रिएट बट देयर आर सेवरल फैक्टर्स लीडिंग टू मटेरियल अनसर्टनिटी, फिर अ मटेरियल अनसर्टनिटी relating to the outcome of litigation where an unfavorable decision could result in a significant outflow of resources. तो ये क्या होगा? ये अफेक्ट कर रहा है कंपनी के फंक्शंस पर. नीचे एग्जाम्पल्स ऑफ EOM पैरा विच में नॉट अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ कंपनी. ठीक है, अब ये क्या है देखो, पहले इजी से समझाता हूं. ऑन मैनेजरल रेम्युनरेशन विच इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ CG. अब देखो ये सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ CG, अब ये हट गया है क्योंकि अपन जब लॉ पढ़ते हैं आपको पता होगा अप्रूवल ऑफ SR है. अब मैनेजरल रेम्युनरेशन अगर अपन एक्सेस से लिमिट देना है, ठीक है, वो 11% से ऊपर देना है, तो अपने को क्या पास करवाना पड़ता है? SR. उससे कंपनी के फंक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर बॉस वो लोग ने SR लिया होगा, अप्रूवल लिया होगा, ये बात FS में डिस्क्लोज किया होगा, ज़्यादा पैसा दे तो PL में आया होगा. तो एक ये पॉइंट हो गया. दूसरा, ऑन फ्रॉड्स दैट हैव बीन डेल्ट इन द FS ऑफ द कंपनी एंड वुड नॉट हैव एनी अकाउंटिंग इफेक्ट ऑन द FS. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही थी, P&L बैलेंस शीट को हटा दीजिए, एक ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा था जिसका अकाउंटिंग इफेक्ट कोई FS पे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी चपाटी हो रही थी जो FS में नहीं हो रहा है, स्टेशनरी चोरी हो रही है, FS में इंपैक्ट नहीं हो रहा है. वहाँ पर कोई CCTV को गायब करके लेके जा रहा है, FS में इंपैक्ट नहीं हो रहा है. पर भैया उसको ठीक कर दिया गया है. अपन क्या फ्रॉड में बोलते हैं ना, छोटा फ्रॉड हो, बड़ा फ्रॉड हो, 1 करोड़ के नीचे फ्रॉड हो, 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड हो. मैंने सिखाया आपको ये चीज़ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड वाले लेक्चर में. तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि बोर्ड को पता होना चाहिए, फिर बोर्ड उसको ठीक करेगा. या लेट अस से अनऑथराइज्ड एक्सेस आ होता था, बार बार गुंडे लोग आ जाते कंपनी के अंदर,
वो फ्रॉड ठीक हो गया, ये बात वो लोग को बताना पड़ेगा, तो बस उसका एफएस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तीसरा, टू अलर्ट द यूजर्स दैट एफएस आर प्रिपेयर्ड एज पर ए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब पहले जब अपने को वो एसएईज, एसआरएस, एसआरई एप्लीकेबल होते थे, तो अपने को देयर वाज समथिंग कॉल्ड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल मैंने एफएस बनाया है, मेरे को सेबी ने बोला एफएस बनाओ एज पर एलओडीआर, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, सेबी के हिसाब से, एलओडीआर के हिसाब से एफएस बनाएगा। तो ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगा तो उसमें चिल्ला के बोलेगा ना कि बॉस, क्योंकि वो लोग वहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे कि बॉस दिस एफएस हैज बीन नॉट बीन प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 एज पर एलओडीआर बनाया गया है, एफएस में आ गया है। अब उससे कुछ गलत नहीं हो रहा है, मेरे एफएस को इंपैक्ट नहीं करेगा कभी भी फ्यूचर में, एंटिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा। हाँ, मेरे को यूजर्स को बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। चौथा, when a financial reporting framework prescribed by law or regulation would be unacceptable but for the fact that it is prescribed by law or regulation। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कुछ एफआरएफ है जो गलत है, तो मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज करेगा, हम भी ऑडिट रिपोर्ट में ईओएमएल लेके जाएंगे। फिर when facts known to the auditor after the date of audit reports and the auditor provides a new or amended report, that is subsequent event। एक ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट के बाद हुआ, ठीक है, बट ऑडिटर को कब पता चला, ऑडिट रिपोर्ट के बाद। तो अपन ऐसे 560 में सीखते हैं, अगर किसी को याद होगा तो, कि अगर ऑडिट रिपोर्ट जा चुकी है मार्केट में तो अपन मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे, आप रिपोर्ट और एफएस दोनों मंगा लीजिए, बराबर, और हम लोग नया रिपोर्ट दे देंगे। तो उससे एफएस पे कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा वहां पर, बट हाँ फंक्शनिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कंपनी के, बट इट बॉस एफएस में, क्योंकि आप लोग डिस्क्लोज करोगे इस चीज को, तो मैं भी ईओएम में लेके जाऊंगा। फिर रिलेटिंग टू द अक्रूवल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिसीवेबल क्लेम बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एस्टिमेट वेयर द अल्टीमेट रियलाइजेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट अक्रूड। दोनों का अमाउंट डिफरेंस है, कंपनी के अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर बाद में पैसा आया है, बाद में जब पैसा आएगा तो आप उसको ईओएम में, कंपनी एफएस में डिस्क्लोज करेगी, हम उसको ईओएम में लेके जाएंगे। सो कोई भी 4-5 यहाँ से पढ़ लो, ऊपर के 4-5 पढ़ लो। सो फंक्शनिंग एंड नॉट फंक्शन विच में नॉट अफेक्ट द फंक्शन, तो ये वाले हैं। सो देखो इजी वाला मैनेजर रेमुनरेशन वाला है, फ्रॉड है जिसका अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर फैक्ट्स दैट केम टू नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो वाला पॉइंट। चौथा, एफआरएफ एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, और एक एफआरएफ जो अनएक्सेप्टेबल है। हो गया आंसर, खत्म, इतना ही है। सो एसए 705, एसए 706 पे बच्चों इतना ही पढ़ना है, 2 ही आंसर है। व्हाट इज ईओएम, मॉडिफिकेशन किया आपने 705, 706 में 2 ही पैराज है, ईओएम और ओएम पैरा। ईओएम का डेफिनेशन एग्जाम्पल, ओएम का डेफिनेशन एग्जाम्पल, हो गया खत्म। समझ में आ रहा है आपको? सो बी रेगुलर, बिकॉज आई एम ऑल्सो रेगुलर ऑन दिस। अब देखो कोविड चल रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, द फिजिकल क्लासेस। So what we have decided that we will come every day with some of the concepts on this platform of Unacademy CA Final channel YouTube, and then अभी प्लान बन गया है, very soon we'll start with doubt sessions, live sessions, question and answer sessions, MCQ discussion also on the Unacademy platform. So आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी and वहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा कोई प्लान के लिए। So when you subscribe, use code ABHICA, ABHICA. When you use the code बच्चों, you will get 10% discount. तो करके देखिए, अच्छा लगेगा। सो एक अलग ही रेवोल्यूशन पे चल रहा है कि सब बच्चों को एजुकेशन जाना चाहिए। सो जितना हो सके उतना बेनिफिट लीजिए, एंड अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, एंड रिकमेंड देम ऑल्सो। स्टे होम गाइस, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।